Hello everyone and welcome. Class 12th Poetry section. And the very first poem of your syllabus is My Mother at 66, written by Kamla Das. So let's first talk about Kamla Das. She was born in Kerala on 31st March 1934 and died on 31st May 2009. In this beautiful journey, she is recognized for her genuine and versatile contribution in Indian literature. She has written and published umpteen numbers of short stories, novels, poems in English and Malayalam as well. But this poem is more special for her just because she has written this for her mother about her deepest love, right? This poem is also throwing light on the invincible bonding between a daughter and a mother. And on the other hand, this poem is all about human relationships and the aging process of our elderly parents, right? So without wasting time, I am going to recite lines of this poem, and after that we will have discussion and explanation of this chapter, right? Driving from my parents' home to Kochi last Friday morning, I saw my mother beside me, doge, open-mouthed, her face a scene like that of a corpse, and realized with pain that she thought away, and looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. So these were lines of this poem, and one more thing I would like to add. This poem has been written in free verse. No rhyming scheme, no full stop. You can say that only commas have been used and like a lyrical idioms. So these are the things make this poem more beautiful. So let's start explanation. Explanation will be in English and Hindi both, so that all the students can understand this poem thoroughly, so that they can write answers in board examinations. So here we are. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोची लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। कमला दास जो है वो अपने माता जी के घर आई हुई थी अपने माता से मिलने, निश्चित रूप से। तो फिर लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को वो ड्राइव करके जा रही थी, कोची जाना था उनको, तो ड्राइव करते हुए एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। सो वाइल ड्राइविंग आई सॉ माई मदर, कमला दास ने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी, उनके बगल में बैठी हुई थी, डोज, नींद की झपकी लेते हुए, आधे नींद में, आप कैटनैप कह सकते हो उसको। आंख बंद था, उनका मुंह थोड़ा सा खुला हुआ था। हर फेस अ सेन लाइक डैट ऑफ अ कॉप्स। अ सेन लाइक, यहाँ पे पोइटिक डिवाइस है, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो। सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है, तुलना किया गया है। असेन, फेस असेन के बारे में बताऊं, मतलब फीका पड़ जाना, पीला पड़ जाना। लाइक डैट ऑफ अ कॉप्स, कॉप्स मतलब होता है डेथ बॉडी, मृतक शरीर। जिस प्रकार मृतक शरीर के चेहरे से रौनक उड़ जाती है, पीला पड़ जाता है, चेहरे से रौनक गायब हो जाती है, उसी तरीके से उनकी माँ का चेहरा हो चुका था। जब उन्होंने अपनी बगल में बैठी हुई माँ की तरफ देखा तो उनका आधा मुंह खुला हुआ था, आंख बंद था, वो झपकी ले रही थी, और चेहरा जो उनका था वो फीका पड़ गया था, पीला पड़ गया था। तो उन्होंने वो डेथ बॉडी के खोए हुए रौनक से उन्होंने तुलना कराया। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, व्हाट काइंड ऑफ पेन शी इज रियलाइजिंग ओवर हियर, द पेन ऑफ सेपरेशन। उन्होंने ये रियलाइज किया कि द एंड ऑफ हर मदर वॉज अप्रोचिंग, द एंड ऑफ हर मदर वॉज नियर। शी रियलाइज डैट वेरी सून शी विल लूज हर मदर। उनको ये लगा कि बहुत जल्द ही वो अपनी माँ को खो देंगी, और अपनी माँ के खोने का दर्द, अपनी माँ से सेपरेट होने का दर्द वो रियलाइज करी उस वक्त। एंड शी थॉट अवे एंड लुक्ड, बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। तो उन्होंने इस ख्याल से बचने के लिए, हटने के लिए, इस
इस ख्याल को अलग रखने के लिए, या इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ फ्रॉम दिस थिंकिंग, सी स्टार्टेड पीपिंग आउटसाइड ऑफ द विंडो। वो खिड़की से, कार की खिड़की से बाहर देखने लगी। उन्होंने देखा, जब हम ड्राइव करते हैं, कोई आप कार में हो या बस में या ट्रेन में, और आप जर्नी करते हो तो देखते हो बाहर के जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी लगे कि वो भी बहुत तेज़ से भाग रहे हैं। स्प्रिंटिंग का मतलब वही हुआ, तेज़ी से भागना। एंड यंग ट्रीज, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट भी दिखाया गया है कि एक तो उनकी माँ उनके बगल में कमज़ोर हैं, फीका पड़ गया उनका चेहरा, डल हो चुका है, वीक है, और बाहर जो दूसरी तरफ वो यंग ट्रीज जो एकदम तेज़ी से दौड़ते प्रतीत हो रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। मैरी मतलब यहाँ पे हैप्पीनेस, फुल ऑफ एक्सटेसी, फुल ऑफ प्लेजर, एंड दे आर हैविंग इमेंस ग्ली। तो जो बच्चे हैं एकदम खुश हैं, वो घरों से निकल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, वो विंडो के बाहर से उनको दिखाई दे रहा है। तो बाहर का जो सीन है विच इज़ फुल ऑफ इंथुजियाज्म, वाइटैलिटी, फुल ऑफ एनर्जी एंड जील, बट ऑन द अदर हैंड बिसाइड हर देयर वॉज हर मदर, शी वॉज वेरी वीक एंड डल। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, और एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेकिंग के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ गज की दूरी पे ये खड़ी थी। आई लुक्ड अगेन एट हर, उन्होंने अपनी माँ को फिर से देखा। वेन पेल एज लेट विंटर्स मून, फिर से वही पीला पड़ा हुआ चेहरा, फीका पड़ा हुआ चेहरा, और उस फीके पड़े हुए चेहरे को लेट विंटर मून से कंपेयर किया गया है। यहाँ पे भी सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है, एज आया हुआ है, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो। लेट विंटर्स मून से क्यों कंपेयर किया गया है, ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आप विंटर के लेट मून को देखोगे, ब्राइटनेस की कमी रहती है, स्ट्रेंथ नहीं होता है, वीक रहता है, डल रहता है, ब्राइटनेस नहीं होती है। जैसे लेट विंटर मून में ब्राइटनेस की कमी है, एनर्जी की कमी है, स्ट्रेंथ की कमी है, उसी तरीके से उनकी माँ का चेहरा है, कोई अट्रैक्शन नहीं, एकदम डल, वीक, ब्राइटनेस की कमी, एनर्जी की कमी। इसीलिए कमला दास ने अपनी माँ के चेहरे को लेट विंटर्स मून से कंपेयर किया है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और उन्होंने अपने बचपन के दर्द को महसूस किया। माई चाइल्डहुड्स फियर, वो बचपन का दर्द क्या होता है, जब बचपन में बच्चे होते तो उनको अपनी माँ के खोने का डर बहुत ज़्यादा होता है। चाहे अगर बहुत देर तक अपनी माँ से न मिले, वो ढूंढने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। वही पुराना दर्द यहाँ कमला दास फील करती हैं कि शायद वो जल्द ही अपने माँ को खो देंगे। चाहे इस ऐसी अवस्था में इनकी माँ है कि पता नहीं कितने दिन जीवित रहें, कब उससे मिल पाए। वही फैमिलियर एक बचपन वाला दर्द अपनी माँ के खोने का, वो इस वक्त एयरपोर्ट पे फील कर रही थी। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। लेकिन जो कुछ भी उन्होंने कहा, बस एक शब्द, इस पोयम में कुछ नहीं कहा गया है थ्रू आउट द पोयम, बस एक वर्ड ये अपने मुंह से बोलती हैं, सी यू सून अम्मा, कि अम्मा जल्दी ही मिलेंगे, फिर मिलेंगे। मतलब दिस लाइन इज शोइंग ऑप्टिमिज्म, फुल ऑफ होप। इनको उम्मीद है अंदर अपने हृदय में, अपने दिल में एक उम्मीद की किरण है कि हाँ, ये फिर से मिलेंगी अपनी माँ से। दैट इज़ वाई सी सेइंग सी यू सून अम्मा। इस सेंटेंस में एक ऑप्टिमिज्म है, एक ताकत है, कि आशा है कि मैं अपनी माँ से फिर मिलूंगी, जल्दी ही मिलूंगी। ऑल आई डिड वॉज स्माइल, स्माइल एंड स्माइल। और जो कुछ भी मैंने किया वो था स्माइल, स्माइल एंड स्माइल। सो एट लास्ट कमला दास was smiling, but behind her smile she was hiding her immense agony, deepest pain which she was feeling. But through her smile she was just hiding that, ताकि उनकी माँ को न पता चले कि इनके अंदर एक दुख है, एक दर्द है उनके खोने का। और इस तरीके से वो सी ऑफ होता है। तो ये है पूरे पोएम का एक्सप्लेनेशन। एंड कमला दास हैज़ ब्यूटीफुली एक्सप्रेस्ड her immense grief, love, deepest affection for her mother with this beautiful poem. So my dear students, stay tuned with us, keep watching videos, keep liking and sharing, and just wait for next video, second poem, and I'll be there very soon. So far, till then, good luck.